माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी शोभनंदन भज जनरंजना शोभनंदन भज जनरंजना यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव
जय मुझपाल स्वामी श्री प्रभुपाद की भक्ति सिद्धांत ठाकुर महाराज श्री प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नमाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की निरंतर श्रीमद् भागवत महापुराण की हरि सर्वेषु भूतेषु भगवान् अष्ट ईश्वर इति भूतानि मनसा कामैस्ते साधु मानयेन् हरि सर्वेषु भूतेषु भगवान् अष्ट ईश्वर इति भूतानि मनसा कामैस्ते साधु मानयेन् हरि सर्वेषु भूतेषु भगवान् अष्ट ईश्वर इति भूतानि मनसा कामैस्ते साधु मानयेन् Hari, the Supreme Personality of Godhead, Sarveshu, in all, Bhuteshu, living entities, Bhagavan, the Supreme Personality, Aste, is situated, Ishvara, the Supreme Controller, Iti, thus, Bhutani, all living entities, Manasa, by such understanding, Kamai, by desires, Te, those, Sadhu Mani, one should highly esteem. Translation: one should always remember the Supreme Personality of Godhead in his localized representation as Paramatma, who is situated at the core of every living entity's heart. Thus, one should offer respect to every living entity according to that living entity's position or manifestation. Purport by His Divine Grace, His Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Hari Sarveshu Bhuteshu. This statement is sometimes misunderstood by unscrupulous persons
who wrongly conclude that because Hari, the Supreme Personality of Godhead, is situated in every living entity is therefore Hari. Such foolish persons do not distinguish between the Atma and the Paramatma, who are situated in every body. The Atma is the living entity, and the Paramatma is the Supreme Personality of Godhead. The individual living entity, however, is different from the Paramatma and the Supreme Lord. Therefore, Hari Sarveshu Bhuteshu means that Hari is situated as Paramatma, not as Atma. Although Atma is part of Paramatma, offering respect to every living entity means offering respect to Paramatma situated in every living entity. One should not misunderstand every living entity to be the Paramatma. Sometimes unscrupulous persons designate a living entity as Daridra Narayan, Swami Narayan, or this Narayan or that Narayan. One should clearly understand that although Narayan is situated in the core of the heart of every living entity, the living entity never becomes Narayan. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Yanti Mirandasya Yanjana Sharaya Chakshurum Militam Yena Shri Chaitanya Manobishtam Sapitam Yena Bhutale Swayambhuva Ramayyam Dharani Swavaratikam Vandeham Shri Guru Shri Yuddha Padakamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Yudham Sagrajatam Sahagana Raghunathamritam Tam Sajivam Sadhuitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Param Sahagana Lalita Shri Vishakhamritamscha He Krishna Karuna Sindhu Deenabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavameshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Haripriye Vanchakalpatarubhyascha Kripasindhurevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. हरे कृष्ण। आप सभी का आज के नरसिंह चतुर्दशी महामहोत्सव में स्वागत है और आप सभी को शुभकामनाएं। आज प्रातःकाल श्रीमद् भागवतम की शिक्षा कक्षा में हमने एक श्लोक देखा जो नारद मुनि प्रहलाद महाराज को बता रहे हैं और प्रहलाद महाराज को जो पूरी शिक्षा उनके माँ के गर्भ में हो गई। आप सोचिए आज के तारीख में लोग जो है अपने बच्चों को आईआईटी में दाखिल करने के लिए जो आईआईटी कोचिंग है वो कब से शुरू हो रहा है? अभी आजकल 8वीं 9वीं कक्षा से शुरू हो रहा है। धीरे धीरे ऐसा होगा कि माँ के गर्भ में ही शुरू हो जाएगा आईआईटी का कक्षा। आप सोचिए उन लोगों को ये जो श्लोक है नारद मुनि का और ये संवाद प्रहलाद और नारद के बीच में समझ में आ गया तो सीधा उधर ही सब शुरू कर देंगे आईआईटी कोचिंग। तो प्रहलाद महाराज की जो कोचिंग है नारद मुनि ने शुरुआत में मतलब पैदा होने से पहले ही शुरू कर दिया।
और इसलिए उनके मन में भगवान के प्रति इतना श्रद्धा था और इतना कन्विक्शन था। तो यहाँ पे नारद मुनि प्रहलाद को बता रहे हैं, कयालु को बता रहे हैं, प्रहलाद को उनके घर में थे, तो नारद मुनि बता रहे हैं कि हरि सर्वेषु भूतेषु, मतलब हरि हर व्यक्ति के, हर जीव के हृदय में बसते हैं। हरि सर्वेषु भूतेषु। अगर ये कन्विक्शन हमें आ गया कि हर व्यक्ति के अंदर परमात्मा है, हमारे अंदर परमात्मा है, तो क्या होगा हमारे जीवन का? लेकिन श्री प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को बताते थे कि अगर मेरे पास 8 शिष्य मुझे मिल गए जिनको 100% कन्विक्शन है कि भगवान कृष्ण ही स्वयं भगवान है और भगवान कृष्ण अस्तित्व है उनका, इतना 100% कन्विक्शन आ गया, बोले सिर्फ 8 लोग मुझे ऐसे चाहिए, तो हम पूरी दुनिया को टेक ओवर कर देते 18 दिन में। प्रभुपाद ऐसे बोल रहे थे। सोचिए, अभी ऑफकोर्स आज तक वो 8 लोग नहीं मिले, अभी बोल रहे हैं, इस बार इसलिए टेक ओवर नहीं कर पाए। तो मतलब आप सोचिए, अगर हम में से एक को भी वो कन्विक्शन आ गया कि भगवान 100% है, तो मतलब प्रभुपाद जी एक व्यक्ति को कन्विक्शन आया तो उन्होंने क्या हिला दिया दुनिया को। सोचिए 12 साल में 10,000 लोगों को इनिशिएटेड डिवोटी बनाया, 10,000 लोगों को, वो भी पाश्चात्य देश में जाके। हम लोग गोवा में 10 साल से ज्यादा प्रचार कर रहे हैं, कितने लोग इनिशिएशन लिया अभी तक, तो हमारा बहुत काम बाकी है कि नहीं? लेकिन प्रभुपाद जी का क्या कन्विक्शन है, सोचो कि इतना कन्विक्शन है कि 10,000 लोग इनिशिएशन ले लिए। 10,000 लोगों को इनिशिएशन दिलवाने के लिए कितने हजार लोगों को प्रचार किया होगा, सोचो। मतलब एटलीस्ट कई लाखों लोगों तक पहुंचे, तब जाके 10,000 लोग इनिशिएशन लिए, है कि नहीं? तो वो कन्विक्शन होता है एक शुद्ध भक्त का। तो प्रहलाद महाराज ने जब ये शिक्षा सुनी माँ के गर्भ में, उनको कोई डाउट नहीं था। हम लोगों को बीच में बहुत डाउट आता है, लेकिन कोई प्रॉब्लम है, हमारे जीवन में कोई समस्या आ गई तो सडनली डाउट आने लगता है। पाकिस्तान ने एक बॉम्ब फोड़ दिया तो सडनली डाउट आता है, अरे क्या भगवान है। तो किसी ने और कुछ कर लिया तो सडनली डाउट आने लगता है। और हमारे जीवन में कोई बीमारी आ गई तो डाउट आने लगता है, स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया तो डाउट आने लगता है। मतलब कुछ भी हो जाए बाहर, हमको अंदर डाउट आने लगता है। लेकिन अगर प्रहलाद महाराज जैसे हमको कन्विक्शन है, तो चाहे कुछ भी हो अंदर डाउट नहीं आएगा, क्योंकि अंदर परमात्मा है और हमको मालूम है कि परमात्मा है। भगवान के नरसिंह देव के बहुत सारे अलग अलग प्रकार के नाम है। तो हम लोग आज नरसिंह देव के कुछ महत्वपूर्ण नाम के ऊपर हम मनन करेंगे और उस नाम को प्रहलाद ने अपने जीवन में कैसे उतारा और उस नाम के ऊपर प्रहलाद ने कैसे मनन किया, उसके ऊपर हम समझने की कोशिश करेंगे। जब हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज को सता रहे थे और उनको बता रहे थे कि भगवान है ही नहीं, मैं ही भगवान हूँ, नारायण की पूजा मत करो, नारायण का नाम मत लो, मेरा नाम लो, ऐसे हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज को बता रहे थे। और बता रहे थे कि नारायण का नाम की जगह पे मेरा नाम लो, ओम हिरण्यकशिपुआय नमः। कितना मुश्किल है बोलना, देखो आसान में नहीं है, ओम नारायण नमः बोलना आसान है, लेकिन तो बहुत फोर्स कर रहे थे। लेकिन प्रहलाद महाराज चाहे कितना भी हिरण्यकशिपु को कोशिश करे, ये समझ नहीं रहे थे। और हिरण्यकशिपु ने ये सोच लिया कि प्रहलाद को भी डराना चाहिए, तो डराने के लिए उसने बहुत सारे अलग अलग तरीके अपनाए। उसने एक बहुत बड़ा तांत्रिक और शक्तिशाली व्यक्ति को बुलाया जिसका नाम था विप्रसिद्धि, और उसको प्रहलाद को डराने के लिए कहा। तो ये विप्रसिद्धि जो है अलग अलग प्रकार के बहुत ही डरावने और बहुत ही खतरनाक तरीके से दृश्य को उत्पन्न कर रहा था प्रहलाद के सामने। अगर आप कोई हॉरर मूवी देखो
और हॉरर मूवी में साउंड ऑफ करो तो हॉरर नहीं कॉमेडी हो जाएगा, लेकिन नहीं मतलब डर ही नहीं लगेगा। और उसकी जगह पे कुछ और साउंड लगा दो, गाने का साउंड लगा दो तो मजा मतलब हंसी मजाक होगा, है कि नहीं। तो ये विप्रसिद्धि जो है उसने वातावरण क्रिएट किया, डर का वातावरण, डर का एक माहौल क्रिएट किया और उसमें अलग अलग प्रकार के प्रेत आत्माएं, अलग अलग प्रकार के जो भूत पिशाच है उनको प्रहलाद को डराने के लिए कहा। प्रहलाद जो है अंदर नरसिंहदेव का एक नाम कंटिन्यूसली जप कर रहे थे और वो नाम क्या था? अमृताय नमः। अमृत मतलब नेक्टर है ना, अमृताय नमः। अमृताय नमः मतलब जो हमें अमृत प्रदान करते हैं। तो नरसिंहदेव का एक और नाम है अमृताय नमः, तो मतलब हमको अमृत प्रदान करने वाले। तो हिरण्यकशिपु ने देखा इसको डर ही नहीं लग रहा है, इतना भूत प्रेत पिशाच आके डरा रहे हैं फिर भी डर नहीं लग रहा है। तो इन्होंने क्या किया, हिरण्यकशिपु ने अपने सैनिकों को बुलाया और सैनिकों को कहा प्रहलाद को अपने जो अस्त्र शस्त्र है उससे आक्रमण करो। तो सैनिकों ने प्रहलाद के ऊपर अस्त्र शस्त्र से आक्रमण किया, लेकिन प्रहलाद को अस्त्र शस्त्र से आक्रमण करने के बाद भी अस्त्र शस्त्र प्रहलाद के आर पार हो रहे थे, लेकिन प्रहलाद को कुछ नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि प्रहलाद को कन्विक्शन हो गया कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। अब सोचिए आत्मा को आप शूट करेंगे तो आत्मा मरेगा, कुछ नहीं होता। आत्मा को आप काटेंगे तो आत्मा कटेगा, कुछ नहीं होता। आत्मा को जलाएंगे तो आत्मा जलता है, कुछ भी नहीं होता है। आत्मा के स्तर पे जो व्यक्ति होता है वो उसका जो शरीर है वो भी इतना शुद्ध हो जाता है तो उसके शरीर को कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। प्रहलाद महाराज का ऐसा था कि उसके शरीर में एक भी घाव भी नहीं था। इतने सारे अस्त्र शस्त्र से प्रहार करने के बाद भी एक भी घाव नहीं था। इतना डराने के बाद भी थोड़ा सा भी डर नहीं था। कुछ लोग जो होते हैं उनके अंदर डर नहीं होता है, मतलब कुछ जो क्षत्रिय होते हैं तो उनका अंदर डर नहीं होता है। जैसे अभी आज की तारीख में जो पाकिस्तान बॉर्डर में लोग लड़ रहे हैं, सैनिक लड़ रहे हैं, उनके अंदर डर ही नहीं है। एक सैनिक बोल रहा है मैं अगला स्क्रिप्ट जो है लाहौर में कहूँगा, मतलब पूछो तो क्या उनका मनोबल है, क्या उनका सोच है। और यहाँ पे प्रहलाद महाराज को अस्त्र शस्त्र से अटैक करने के बाद भी उनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि वो आत्मा के स्तर पे थे। उसके बाद हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज को हाथियों से कुचलने के लिए कहा। 8 हाथी, बहुत ही शक्तिशाली हाथी प्रहलाद को कुचलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन प्रहलाद जो है भगवान का नाम ले रहे थे, अमृताय नमः। और हाथी के पैर टूट गए, लेकिन प्रहलाद का जो छाती है उसको कुछ भी नहीं हुआ। तो हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को आग पे फेंकने के लिए कहा और वहां पे भी प्रहलाद वही मंत्र जप कर रहे थे, अमृताय नमः, नरसिंहदेव का नाम ले रहे थे। तो वो जो आग था उनके लिए आइसक्रीम जैसा ठंडा था, एकदम कूल लग रहा था उनको। और तो एक मंत्री ने हिरण्यकशिपु को कहा ऐसा मत करो, इसको थोड़ा जहर पिला दो, मर जाएगा। तो खाने के साथ जहर मिला के दे दिया प्रहलाद महाराज को, और प्रहलाद ने उस खाने को भगवान को अर्पण किया और भगवान का जो भोग प्रसाद है समझ के खाया। अमृताय नमः, भगवान का अमृत सोच के खाया और तुरंत जो है उनकी जान बिल्कुल चली नहीं गई। वो प्रसाद जो है अमृत बन के उनको उनका पोषण करने लगा। मृत्यु का मतलब डेथ, मृत्यु। अमृत्यु का मतलब जो व्यक्ति मृत्यु को प्रिवेंट करता है उसको अमृत्यु कहते हैं। तो नरसिंहदेव वो व्यक्ति है, वो भगवान है जो प्रहलाद की मृत्यु को प्रिवेंट कर रहे थे। मतलब हर बार हिरण्यकशिपु को मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन क्योंकि नरसिंहदेव अमृत है वो प्रहलाद को मरने नहीं दे रहे थे। इसलिए नरसिंहदेव का ये जो नाम है अमृताय नमः,
मतलब क्या है कि वो व्यक्ति जो आपके जीवन में एक अमृत के रूप में आते हैं, और आप चाहे आपके जीवन में चाहे कितने भी परेशानियां हो, चाहे कितने भी प्रॉब्लम्स हो, कितनी भी समस्याएं हो, उन समस्याओं को संभालते हैं और आपको उन समस्याओं से गुजरने को नहीं देते, उसको अमृताय हुई नमः बोलते हैं। हम भी अपने जीवन में भगवान का इनाम ले सकते हैं। जब भी हम कोई संकट में है, जब भी हमें कोई तकलीफ देने की कोशिश कर रहा है, जब भी हमें ऐसा कोई डेंजर या कोई ऐसा सिचुएशन हो जहाँ पे लगे कि क्या होने वाला है समझ में नहीं आता है, तो इस समय जो है इस भगवान का नाम लेंगे तो ये भगवान जो है हमें हमारी रक्षा करेंगे। प्रहलाद महाराज जब हिरण्यकशिपु ने उनको एक पहाड़ के ऊपर से फेंका, तो प्रहलाद महाराज जो है वो पहाड़ के ऊपर जब खड़े थे, भगवान का नाम ले रहे थे, नरसिंह देव का नाम ले रहे थे और नरसिंह देव से बहुत ही तीव्रता से प्रार्थना कर रहे थे। और प्रहलाद जी जब पहाड़ से जब फेंक दिया उनको, जो हवे में थे, नीचे की तरफ आए रहे थे, हवे में थे, तब भी भगवान का नाम ले रहे थे और उनको पूर्ण विश्वास था कि भगवान मेरी रक्षा करेगी। और जब नीचे पहुंचे, जमीन पे पहुंचे, तो भगवान ने उनको हाथ पे पकड़ लिया और जब भगवान के गोद पे थे, भगवान के हस्त में थे, तब भी प्रहलाद महाराज नरसिंह देव का नाम ले रहे थे, भगवान का नाम ले रहे थे। तो यहाँ पे 3 स्तर है। एक सबसे ऊपर है जब फेंकने ही वाले हैं, और जो बीच में है फेंक चुके हैं, और नीचे भगवान के हाथ में है, भगवान ने रक्षा कर लिया है। तो हम देखेंगे हमारा जो फेथ है वो अलग अलग लेवल का अलग अलग होता है, ठीक है नहीं? मतलब ऊपर है, मतलब फेथ हो सकता है कि शायद भगवान कुछ कर लेंगे और हमें फेंकने से बचा लेंगे। फेंक दिया, फिर रास्ते में हम लोग मरने ही वाले, तो सोचेंगे अरे यार इतने साल जपा किया, कुछ काम ही नहीं है, हमारा फेथ सबसे नीचे रहेगा। और अगर भगवान ने हमें पकड़ लिया तो सडनली हमारा फेथ विश्वास बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है नहीं? तो हम लोग जो है हमारा फेथ जो है ऊपर नीचे होता है, स्टॉक मार्केट की तरह ऐसा ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता है ना? लेकिन अगर हमें प्रहलाद जैसा विश्वास हो तो विश्वास जो है कम नहीं होता है, बढ़ता ही जाता है। ऐसा नहीं कि कोई स्थिति में वो विश्वास कम हो, तो हमें अपने मन को और अपने जो श्रद्धा को इतनी तीव्रता से रखनी चाहिए, चाहे हमारे जीवन में कोई भी हालात क्यों ना हो, चाहे हमारे जीवन में कोई भी संघर्ष क्यों ना हो, हमारी श्रद्धा जो भगवान के प्रति वो कम नहीं होनी चाहिए, तो हमारे विश्वास जो है भगवान के प्रति वो डगमगाना नहीं चाहिए। ये अगर से प्रहलाद महाराज से हम सीख सकते हैं। तो जब प्रहलाद महाराज को हिरण्यकशिपु अलग अलग प्रकार से मारने की कोशिश कर रहे थे, तो हिरण्यकशिपु को बहुत गुस्सा आ रहा था, मैं इसको इतना मारने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये सुधर ही नहीं रहा है। और उल्टा प्रहलाद महाराज सिर्फ अपने आप में भगवान का नाम नहीं ले रहे थे, अपने दोस्तों को भी प्रेरित कर रहे थे। प्रहलाद के जितने भी क्लासमेट्स थे सब लोग जपा करने लगे, सब लोग भगवान का नाम लेने लगे। तो हिरण्यकशिपु को बहुत ही गुस्सा आने लगा कि ये प्रहलाद, एक प्रहलाद तो हमारे लिए भारी पड़ रहा है, ये बहुत सारे प्रहलाद बना रहा है, एक एक करके हर घर में एक प्रहलाद होने वाला है। तो हिरण्यकशिपु को बहुत गुस्सा आ रहा था। तो हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को कहा कि तुम जिस भगवान को आराधना कर रहे हो, जिस भगवान का पूजा कर रहे हो, क्या तुमको मालूम है वो भगवान मुझसे डरते हैं? हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को कहा। उसने कहा बहुत साल पहले जब विष्णु वराह रूप में आए थे और हिरण्यकशिपु के जो भाई है हिरण्याक्ष, उसका वध किया, तो हिरण्याक्ष को वध करने के बाद हिरण्यकशिपु ने ये प्रण लिया कि वो विष्णु को मार देंगे। तो हिरण्यकशिपु जो है सब जगह भ्रमण करने लगा विष्णु को तलाशते हुए, और अंत में वैकुंठ लोक पहुंच गया, जहाँ पे विष्णु जो क्षीर सागर है वहाँ पे निवास करते हैं।
महालक्ष्मी, गरुड़, विश्वक्सेन सबके साथ निवास करते हैं आदिशेष की शैया में। तो जब वो वहां पे हिरण्यकशिपु पहुंचा, शैया तो था, आदिशेष का शैया था, महालक्ष्मी भी थी, सब लोग थे, लेकिन विष्णु गायब थे। तो हिरण्यकशिपु को लगा कि विष्णु को इतना डर लग गया है कि जाके छुप गए। तो हिरण्यकशिपु जो है उस समय से उसने ये ठान लिया कि विष्णु मुझसे डर गए, और सबको बोलने लगा देखो विष्णु इतने कावड़ है, मुझसे डर गए, छिप गए जाके। तो प्रहलाद को भी उसने यही कहा कहानी। तो प्रहलाद हंसने लगे। प्रहलाद ने कहा भगवान जो है छुपे नहीं है आपसे डरे नहीं है। भगवान किधर और जाके छुपे नहीं है, भगवान जो है आपके हृदय में ही छुपे हुए, आपके हृदय में बैठे हुए हैं। तो आपने पूरे दुनिया में भगवान को ढूंढने की कोशिश किया, लेकिन क्या आपने आपके हृदय के अंदर जाके देखा? वहीं पे भगवान बैठे हुए आपके एकदम पास में। तो हिरण्यकशिपु को बहुत ही आश्चर्य लगा, बोले मेरे हृदय के अंदर जा सकते हैं भगवान? तो प्रहलाद महाराज ने कहा आपके हृदय को छोड़ो, सबके हृदय के अंदर भगवान पहुंच जाते हैं। और भगवान जो है हम सबके हृदय में बैठते हैं, निवास करते हैं, और ये निरीक्षण कर रहे हैं कि हम लोग किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं मैं उपदृष्टा अनुमंता हूँ, मतलब मैं लोगों के हृदय में बैठा हूँ और देख रहा हूँ कि ये लोग कैसा जीवन जी रहे हैं, और अपने हृदय से वो पूरे ब्रह्मांड को, पूरे सृष्टि को नियंत्रण करते हैं। तो हिरण्यकशिपु ने जब सुन लिया तो बहुत गुस्सा आ गया। बोलता है तुम कह रहे हो कि भगवान सब जगह है, मेरे हृदय में भी है, तो इस खंबे के अंदर है क्या? तो वो खंबे के ऊपर हिरण्यकशिपु को थोड़ा सा ज्यादा विश्वास था, क्योंकि जब हिरण्यकशिपु का जब महल का निर्माण हो रहा था, वो खंबा जब बन रहा था वही पर खड़ा था। उसने देखा वो खंबे के अंदर कुछ नहीं है, बराबर उसने कंस्ट्रक्शन के समय सब देख लिया, तो इसलिए कॉन्फिडेंस के साथ वो खंबे के बारे में बोले इस खंबे के अंदर है क्या? बोला इस खंबे में भी है, सब जगह है। तो उस समय जो है प्रहलाद महाराज ने जब ऐसा कहा कि भगवान इस खंबे में भी है, तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उस खंबे को तोड़ने की हिरण्यकशिपु ने कोशिश किया। जब उसको तोड़ने की हिरण्यकशिपु ने कोशिश किया, भगवान ने उस खंबे को चीर फाड़ के खंबे के अंदर से बाहर निकले नरसिंहदेव के रूप में। तो हिरण्यकशिपु बहुत ही बौखला गया कि इसके अंदर तो कुछ नहीं था, इसके अंदर कैसे पहुंचे इतना बड़ा सिंह, इतना बड़ा शेर कैसे पहुंच गया, समझ नहीं आया। तो आचार्य कहते हैं कि पहले उस खंबे में भगवान नहीं थे, लेकिन जैसे ही प्रहलाद ने कहा इस खंबे में है, तो भगवान उस खंबे में पहुंच गए। क्यों उस खंबे में भगवान पहुंच गए? क्योंकि भगवान का एक नाम है सर्वदृक्। सर्वदृक् का मतलब क्या है कि दृक् मतलब जो देखने वाले हैं, सर्वदृक् मतलब जो सब कुछ देख रहे हैं, सब कुछ नियंत्रण कर रहे हैं, सब कुछ समझ रहे हैं, उसको सर्वदृक् बोलते हैं। तो प्रहलाद महाराज ने जैसे ही कहा कि इसके अंदर भगवान है, भगवान तुरंत वहां पे पहुंच गए। क्योंकि जैसे ही कोई भक्त कुछ भी कहता है, तो उस भक्त के वाक्य को सत्य बनाना भगवान का काम है। और भगवान देख रहे हैं कि भक्त मेरे क्या बोल रहे हैं। जैसे नारद मुनि जब प्रहलाद कयादु के गर्भ में थे, नारद मुनि ने कहा कि ये जो बच्चा है महान भक्त बनेगा। तो उस वाक्य को सत्य बनाने के लिए नरसिंहदेव आए। आप सोचिए भक्तों में जो शब्द है, भक्तों के वाक्य जो है उसमें कितना शक्ति है। भक्तों के वाक्य में कितना शक्ति है कि जहां पे भक्त ने कुछ कहा वहां पे भगवान मैनिफेस्ट हो जाते हैं। वृंदावन में एक बार सारे जो ब्रजवासी थे, बच्चे थे, ग्वाल बाल थे, खेल रहे थे और वो हाइड एंड सीक खेल रहे थे, लुका छुपी। तो भगवान कृष्ण के साथ लुका छुपी खेल रहे थे। तो एक बार
भगवान कृष्ण ने कहा सारे बच्चों को, मैं जाके छुपने वाला हूँ, आप लोग मुझे ढूंढो। अब सोचिए, अगर भगवान छुपने वाले हैं तो कौन ढूंढ सकते हैं उनको, है कि नहीं? मतलब योगी इतने मेहनत से, इतना परिश्रम से भगवान को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन भगवान को ढूंढना आसान नहीं है। तो कृष्ण जाके छुप गए और ये सारे जो ग्वालबाल है वो कृष्ण को ढूंढने लगे, लेकिन 2 ही मिनट के अंदर कृष्ण को ढूंढ लिया। कृष्ण परेशान हो गए, बोले ऐसे कैसे, आप लोगों ने कैसे ढूंढ लिया? यहाँ पे हिमालय में इतने बड़े बड़े योगी हजारों साल से ढूंढने की कोशिश कर रहे, ढूंढ नहीं पा रहे, लेकिन आपने 2 मिनट के अंदर मुझे कैसे ढूंढ लिया? सारे ग्वालबालों ने कृष्ण को कहा, हमने देखा आसमान में कोई बादल नहीं है, लेकिन मोर जो है बहुत जोर जोर से गरज रहे हैं। तो हमने देखा कि मोर किधर देख रहे हैं, और जिस दिशा में मोर देख रहे थे आप मिल गए। तो मोर जो है, जो बादल, काले बादल को देखते हैं तो गरजने लगते हैं, तो चिल्लाने लगते हैं ना। तो भगवान के शरीर को देख लिया मोरों ने, और उनको लगा कि ये घनश्याम बादल है, तो वो लोग जोर जोर से नाचने लगे, चिल्लाने लगे। तो ये भक्तों ने क्या कहा, वालों ने सिर्फ मोर जिस दिशा में देख रहा है वो देख लिया। तो आचार्य कहते हैं, अगर आपको भगवान को ढूंढना है तो भगवान को भक्तों की आवाज में ढूंढो, मिल जाएंगे भगवान बराबर से। तो मोर का आवाज सुना, बराबर भगवान मिल गए। तो यहाँ पे प्रहलाद महाराज ने बस बोला, इस खंबे में भगवान है, बस पहुंच गए। तो भगवान को ढूंढने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। भगवान जो है भक्तों की आवाज में छुपे हुए हैं, और जो भक्त बोलते हैं उसको सुन लिया, समझ लिया, तो आपको भगवान जरूर मिल जाएंगे। तो हिरण्यकशिपु को ये राज मालूम नहीं था कि जहां पे प्रहलाद बोलेंगे वहां पे पहुंच जाएंगे नरसिंहदेव। तो सोचिए कि नरसिंहदेव, तो कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि हम भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की सेवक है हम लोग, लेकिन एक्चुअली आप देखेंगे सही में भगवान भी भक्तों की सेवक है। जैसे हम भगवान की सेवा करते हैं वैसे भगवान भी हमारी सेवा करते हैं, ये रेसिप्रोकल है। आज दुनिया में, इस दुनिया में कोई भी संबंध में आदान प्रदान कंप्लीट नहीं होता है ना। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कलयुग का एक लक्षण है कि अगर आप दूसरे के प्रति 100% प्रेम दिखाओ तो आपको 50% ही मिलेगा वापस कलयुग में। तो हम लोग मनुष्यों को बहुत प्रेम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई वापस प्रेम करता ही नहीं है 100%, तो हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। भगवान के साथ आदान प्रदान जब करते हो, प्रेम जब करते हो, सेवा जब करते हो, भगवान भी उतनी ही तीव्रता से आपके प्रति सेवा करने की कोशिश करेंगे, आपके प्रति डेडिकेशन, कमिटमेंट दिलाने की कोशिश करेंगे और आपसे प्रेम करने की कोशिश करेंगे। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसने भगवान का सहारा लिया हो और भगवान से कोई आदान प्रदान मिला न हो। आप खुद के भी जीवन में देख लीजिए, आप लोग इतने साल से आप लोग सब भक्ति कर रहे हैं, आप सोच के देखिए कि कितनी बार आपको भगवान का जो आदान प्रदान है उसका एक्सपीरियंस, अनुभव हुआ है। आप में से हर व्यक्ति एटलीस्ट कम से कम 1 या 2 कहानी तो बता ही सकता है कि जब कैसे भगवान ने मेरे लिए ये किया, लेकिन हम सबके जीवन में कुछ ना कुछ हुआ है जिससे हमको पूरा ही कन्विक्शन है कि भगवान है और भगवान हमारा जो प्रार्थना है वो सुनते हैं। तो इसको इसलिए भगवान का, नरसिंहदेव का एक नाम है सर्वदृक्, मतलब वो हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, हमारी इच्छाओं को समझ रहे हैं, हमारे वाक्यों को सत्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आदान प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं। ये भगवान का और एक बहुत सुंदर नाम है। एक बार एक महान वैष्णव आचार्य थे जो एक स्थान पे, एक तीर्थ स्थान पे निवास कर रहे थे। उस तीर्थ स्थान पे 2 लोग थे जो बातचीत कर रहे थे, एक दूसरे के साथ वार्तालाप कर रहे थे, और उनमें से एक व्यक्ति थे जो वेदों में निपुण थे और दूसरे व्यक्ति जो थे वो शूद्र कुल के थे, लेकिन उनको उतना ज्ञान नहीं था और इतना वेदों का नॉलेज नहीं था। लेकिन दोनों जो थे एक दूसरे के साथ
बातचीत कर रहे थे। और बातचीत करते वक्त ये जो समय था ये इक्लिप्स का समय था, जो ग्रहण, सूर्य ग्रहण का समय था। और सूर्य ग्रहण के समय जो है वो जो बहुत ही ज्ञानवान व्यक्ति है, वो जो मूर्ख व्यक्ति है जिसको ज़्यादा ज्ञान नहीं, उसको बुला रहे थे, वो बोल रहे थे आप मेरे साथ सूर्य ग्रहण के समय नदी में स्नान करने के लिए आ जाओ। ये पवित्र नदी है और यहाँ पे स्नान करेंगे सूर्य ग्रहण के समय भगवान का नाम लेते हुए, तो हमारे जितने भी पाप है सब धुल जाएंगे। तो उस समय जब इस व्यक्ति ने कहा कि मेरे सारे आपके सारे पाप भूल जाएंगे, आप नदी में स्नान करेंगे सूर्य ग्रहण के समय, तो वो दूसरे व्यक्ति जो मूर्ख व्यक्ति थे, जिनको ज्यादा ज्ञान नहीं था, उन्होंने कहा कि मैंने जितना पाप किया है, मैंने इतना पाप किया है कि 1-2 फुट पानी के अंदर डुबकी मारने से ये पाप धुलने वाला नहीं है। ये पाप धुलने के लिए नरसिंहदेव को खुद आना पड़ेगा और मेरे छाती के अंदर अपना नाखून डाल के सारे पाप को निकालना पड़ेगा, तभी जाके मेरे सारे पाप धुलेंगे। तो ऐसा इस शूद्र व्यक्ति ने कहा। और यहाँ पे पराशर भट्ट जो थे वहां पे खड़े थे और ये दोनों का जो बातचीत है सुन रहे थे। और जैसे ही पराशर भट्ट ने ये दूसरे शूद्र व्यक्ति का बात सुना कि नरसिंहदेव को खुद आना पड़ेगा, मेरे छाती के अंदर अपना नाखून डाल के सारे मेरे मुझे शुद्ध सारे पाप को निकालना पड़ेगा, बोला पराशर भट्ट भाग के आए वहां से और भाग के आके इस व्यक्ति को आलिंगन किया, ये शूद्र व्यक्ति है इसको आलिंगन किया और उन्होंने कहा कि अभी मुझे समझ में आया कि नरसिंहदेव का भक्ति का मतलब क्या है। पराशर भट्ट ऐसा कह रहे इस शूद्र व्यक्ति को बिल्कुल समझ में नहीं आया। और उल्टा वहां पे जो पंडित है उसको तो बिल्कुल समझ में नहीं आया। मतलब इतने महान संत पराशर भट्ट जैसे आके मुझे आलिंगन नहीं कर रहे, शूद्र को जाके आलिंगन कर रहे। तो पराशर भट्ट ने कहा एक बार वेदव्यास और बहुत सारे संत जो थे नैमिषारण्य में बैठे हुए थे और बातचीत कर रहे थे। और जब बातचीत कर रहे थे वो अलग अलग विषयों के ऊपर बातचीत कर रहे थे। उस समय एक विषय के ऊपर बातचीत कर रहे थे, वो क्या था कि नरसिंहदेव ने जब हिरण्यकशिपु का वध किया, हिरण्यकशिपु के शरीर के अंदर उन्होंने अपना नाखून डाला और पूरा चीर-फाड़ कर दिया हिरण्यकशिपु के शरीर को। और चीरने के बाद, फाड़ने के बाद जो है अपने नाखूनों को चाटने लगे नरसिंहदेव। मुझे अपने नाखून को चाटने लगे, हृदय में खून लगा हुआ है, नाखून को चाट रहे हैं। तो सारे संत व्यासदेव को पूछने लगे कि ये कहानी हम देखेंगे तो हमको लगता है कि ये नरसिंहदेव जो है बहुत ही हिंसक है, बहुत ही हिंसा करने वाले व्यक्ति है। तो जब हिंसा होती है, हिंसा मतलब क्या है, बहुत ही पीड़ा पहुंचाते हैं, बहुत ही क्रूर है, बहुत दर्द देते हैं दूसरों को। तो व्यासदेव को जब कहा सारे संतों ने कि नरसिंहदेव ऐसा चीर-फाड़ कर रहे हैं और हिंसा दे रहे हैं लोगों को, हिरण्यकशिपु को हिंसा दे रहे हैं, तो व्यासदेव ने इन साधुओं को समझाया कि नरसिंहदेव ऐसा क्यों करते हैं। उसके पीछे का जो गहरा कारण है, उसका जो तत्व है बता रहे व्यासदेव बताते हैं कि इन सारे असुरों ने इतने सारे पाप किए, तो ये सारे जो पाप करने के बाद जो है हर पाप का जो क्या बोलते हैं उसको, रिजल्ट जो रिएक्शन जो वो मिलेगा ही मिलेगा, है कि नहीं। तो मतलब ये किसी का खून किया तो आपको उसके लिए भुगतना तो पड़ेगा ही, है कि नहीं। तो अगर कोर्ट ने आपको फांसी का सजा या कोई भी सजा नहीं दिया, लेकिन कर्म जो आपको सजा देगा ही देगा, है कि नहीं। ये जीवन में सजा नहीं मिलेगा तो अगले जीवन में तो मिलेगा ही मिलेगा, कर्म का जो फल है।
तो व्यासदेव बता रहे हैं अगर ये सारे जो राक्षस, स्पेशली अभी हिरण्यकशिपु ऐसा राक्षस, इसको अपना कर्म का फल मिलना है तो उसको कितना जन्म लेना पड़ेगा और कितने जन्म के पाप का फल जो है उसको मिलेगा एक एक करके। लेकिन जब नरसिंहदेव ने एक बार उसके पेट के अंदर हाथ डाल के चीर दिया, जो दर्द हिरण्यकशिपु को उस समय हुआ वो इतने सारे जीवन का दर्द एक साथ उसने महसूस कर लिया। एक 5 मिनट में उसने इतने सारे जीवन का जो दर्द है एक साथ में ही महसूस कर लिया। तो नरसिंहदेव व्यासदेव कह रहे हैं कि बाह्य रूप से देखेंगे नरसिंहदेव हिंसा करने वाले हैं, लेकिन एक्चुअली गहराई से देखेंगे वो उसके दर्द को कम कर रहे हैं। क्या ज्यादा अच्छा है, 5 मिनट में सब कुछ सहन कर लो या 10 जीवन में सहन करो, क्या ज्यादा अच्छा है? 5 मिनट में खत्म हो जाएगा तो अच्छा है कि नहीं? तो हिरण्यकशिपु को मारने के बाद उसको जो दर्द दिया वो हिंसा नहीं हुआ, वो तो बिल्कुल हिंसा हुआ ही नहीं है। तो जब इस शब्द हिंसा जो शब्द उसको उल्टा करेंगे तो सिम्हा बन जाता है कि नहीं? हिंसा जो उल्टा करो सिम्हा बन गया। तो नरसिंहदेव जो है उस समय से, उस दिन से सारे साधु लोग जो है नरसिंहदेव को सिम्हा बुलाने लगे। ये हिंसा नहीं है, ये सिम्हा है। तो उस समय से भगवान नरसिंहदेव का नाम हो गया सिम्हम। सिम्हम मतलब वो व्यक्ति जो आपको आपके पाप को जल्दी से धुलाते हैं, जल्दी से निकालते हैं, उसको सिंह कहते हैं। तो नरसिंहदेव बाह्य रूप से देखेंगे तो बहुत ही हिंसक लगते हैं और लोग नरसिंहदेव का रूप देखते हैं तो बहुत डर जाते हैं। एक बार एक आदमी गया अपने भक्तिवेदांत हॉस्पिटल में सर्जरी के लिए, एकदम नया आदमी था, उसने कभी जीवन में इस्कॉन गया नहीं था, कोई भगवान का नाम मालूम नहीं था उसको। ऑपरेशन थिएटर में गया, वहाँ पे नरसिंहदेव का फोटो लगा हुआ था एकदम बड़ा सा। तो आदमी ने नरसिंहदेव का फोटो देख के बोला यार ऑपरेशन थिएटर में इतना डरावना क्यों तस्वीर लगा हुआ है, मतलब इसको देख के कोई भी डर जाएगा। वो डॉक्टर ने बोला पहला सर्जरी था दुनिया का, फर्स्ट सर्जरी, ओपन हार्ट नहीं ओपन स्टमक सर्जरी हो गया। तो उसने कहा सर्जरी का रिजल्ट क्या हुआ? तो डॉक्टर ने कहा पेशेंट डेड। पेशेंट मर गया लेकिन सर्जरी सक्सेसफुल हो गया। तो यहाँ पे भगवान जो है हमारे हृदय में एक सर्जरी करते हैं और कभी कभी वो सर्जरी जब होता है थोड़ा दर्द होता है, लेकिन हमें ये याद होना चाहिए जब भगवान कोई भी चीज देते हैं हमें, तकलीफ भी देते हैं, तो तकलीफ से शुद्धिकरण नहीं होता है। तो भगवान जो है जब भक्त भगवान के पास आते हैं, भगवान का नाम लेते हैं और भगवान से जुड़ जाते हैं, कभी कभी हमको लगता है कि हमारे जीवन में कुछ गलत होना ही नहीं चाहिए, हमारे जीवन में कोई दुख दर्द होना ही नहीं चाहिए। बहुत सारे भक्तों को लगता है ऐसा कि एक बार भक्ति में आ गए तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए क्योंकि भगवान जो है संभाल लेंगे हमको, है कि नहीं? प्रहलाद का स्टोरी हमने पहले ही सुना, अमृतावय नमः। तो भगवान जो है हमारे सारे दुख दर्द निकाल लेंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा हमको। लेकिन ऐसा नहीं होता है। भगवान जो है हमें तकलीफ नहीं देते, लेकिन अभी थोड़ा सा तकलीफ जब देते हैं हमको समझ में आना चाहिए बहुत सारे दूसरे जीवन हमको जो मिलने वाला है, इतने सारे जीवन में इतने सारे तकलीफ जो झेलने वाले हैं हम लोग, वो एक ही दिन में 5 दिन में खत्म हो जाएगा। तो अगर हम अभी कोई दर्द से गुजर रहे हैं, अभी कोई तकलीफ से गुजर रहे हैं, अभी कोई पीड़ा से गुजर रहे हैं, तो हमें समझ में आना चाहिए नरसिंहदेव जो वो पीड़ा है हमें क्यों दे रहे हैं। वो इतने सारे जीवन में जो पीड़ा है एक ही साथ आ जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो उससे आगे हमको और जीवन लेने की जरूरत नहीं है। तो जब भक्तों के जीवन में कभी दर्द भी होता है, समझ जाइए कि भगवान जो है हिंसक नहीं है, हिंसा करने के लिए दर्द नहीं दे रहे, वो सिंह है। हमारे बहुत जन्मों का दर्द जो है, बहुत जन्मों को जो पीड़ा जो है उसको निकाल रहे हैं।
जब पराशर भट्ट को ये समझ में आया, वो भाग के गए और उस आदमी को आलिंगन किया। उनको समझ में आया कि अब भी मुझे समझ में आ रहा है कि आप जो बोल रहे हो वही व्यासदेव बोल रहे हो। सोचो ये आदमी जो है शूद्र है, इसको कुछ ज्ञान ही नहीं है, लेकिन व्यासदेव जो उस दिन बता रहे थे साधुओं को, उसका ऐसा समझ में आ गया। तो जब हम भक्ति करते हैं, हमें चाहे बहुत श्लोक मालूम न हो, बहुत सारा वैदिक ज्ञान मालूम न हो, लेकिन एसेंस मालूम पड़ गया तो हमारी भक्ति की सफलता है। बताइए, ये विचार के साथ भगवान के इन 3 नामों के ऊपर मनन करेंगे इस नरसिंह चतुर्दशी के दिन। अमृता है वे नमः, मतलब वो जो व्यक्ति जो हमारे जीवन में जो पीड़ा है उसको अमृत की तरह उसको बदल देते हैं, और उसको जो पीड़ा है उसको जो वो श्रद्धा है हमारी बढ़ाते हैं। दूसरा है सर्वदृक, मतलब वो व्यक्ति जो हर चीज़ को देख रहे हैं, हमारे हृदय में बैठे हुए परमात्मा के रूप में हर चीज़ को देख रहे हैं, हर वाक्य के हर भक्त के हर वाक्य को देख रहे हैं। और उस नाम से हमें ये मनन करना चाहिए, हमें जितने भक्त हमारे जीवन में आते हैं उन सबके उनके मुख से जो शब्द निकलते हैं उनको बहुत ही गंभीरता से हमें लेनी चाहिए, क्योंकि भगवान भक्तों के शब्दों को गंभीरता से लेते हैं और वो हमारे सारे इच्छाओं को, सारे विचारों को, सारे प्रार्थनाओं को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और तीसरा हमने कहा कि भगवान जो है सिंहहर है, और जब भी हमारे जीवन में कोई हिंसा, कोई दर्द होता है, कोई पीड़ा होती है, तो समझना चाहिए भगवान नरसिंह देव जो है हमारे अंदर सर्जरी कर रहे हैं, हमारे अंदर थोड़ा सा हिंसा दे रहे हैं, लेकिन वो हिंसा जो है, वो दर्द जो है हमें शुद्ध करता है, इतने जन्मों के दर्द से हमें दिल जाता है। आइए इन तीनों प्रार्थनाओं के साथ, इन तीनों भगवान के नरसिंह देव के नामों के साथ हम इस नरसिंह चतुर्दशी को बहुत ही गहराई से, बहुत ही ध्यान से और बहुत ही प्रेमपूर्वक मनाएं और नरसिंह देव का शरण लें। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। नरसिंह देव भगवान की